Good morning, children. Today we will start a new chapter, poverty. As we all know that there are many problems in our country that we have to face, like overpopulation, illiteracy, inflation, unemployment, corruption, poverty. So there are many problems in our country. So in this chapter we have to study about poverty. So, what is poverty? Poverty is such a situation existing in the economy under which one class of economy is unable to fulfill the minimum basic needs. We know that we have many basic needs we have, right? So, they are clothes, shelter, food, education, health, means medicines. So, these all are our basic needs. But there is one class of economy in society that cannot satisfy the basic needs, right? They cannot satisfy their basic needs like food, clothes, and shelter. Okay, so they are called poor. Okay, in most of the developing economies where the per capita income is very low and there exists high level of income inequality, a large portion of poor population cannot enjoy a healthy life because of unavailability of minimum basic requirements such as nutritive foods, clothes, proper housings and many others, राइट। एक ऐसा जो हम क्लास है जो उसकी पर कैपिटा इनकम बहुत ही ज़्यादा लो है एंड दे कैन नॉट सेटिस्फाइड देयर बेसिक नीड्स, जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है उनको भी वो सेटिस्फाई नहीं कर सकते। ऐसा एक लार्ज पोर्शन है पूरी पॉपुलेशन का दैट कैन नॉट सेटिस्फाइड देयर requirements. Okay. On the other hand, rich and resourceful class enjoys high income and high standard of living. और उसके सामने ऐसा है कि एक रिच और रिसोर्सफुल क्लास जो है, जो अपनी सभी नीड्स जो है वो बहुत अच्छे से फुलफिल कर सकता है, राइट। ड्यू टू एग्जिस्टिंग इकोनॉमिक इनइक्वालिटी इन द कंट्री, द सोसाइटी फेसेस डिससेटिस्फेक्शन, रेस्टलेसनेस, हेट्रेड एंड क्लास कॉन्फ्लिक्ट। ओके, सो इससे क्या होता है, सोसाइटी में एक इनइक्वलिटी ऑफ इनकम जो है वो क्रिएट होता है कि जो गरीब है वो बहुत ही ज़्यादा गरीब रह जाता है और जो पुअर है वो बहुत ही ज़्यादा पुअर रह जाता है। ओके, सो अकॉर्डिंग टू HDR in 1997, economic development is a resource and human development is the goal. HDR का फुल फॉर्म है ह्यूमन डेवलपमेंट रिकॉर्ड। सो एज पर दिस रिकॉर्ड ऑफ 1997, इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज अ रिसोर्स एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इज द गोल। मीन्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है वो रिसोर्स है और जो उसका मेन गोल जो होता है वो ह्यूमन डेवलपमेंट का होता है। Okay, so it is expected that economic development should result in reduction in poverty. जो ये एक्सपेक्ट किया जाता है कि जो इकोनॉमिक पोरिटी है वो कम हो जाए, रिडक्ट हो जाए। इकोनॉमिक डेवलपमेंट से इकोनॉमिक जो पोरिटी है वो रिड्यूस हो जाए। अनलेस देयर इज रिडक्शन इन इनकम इनइक्वालिटी इन एंड पोरिटी, income development cannot be said to be the development in true sense. जब तक समाज में इनइक्वालिटी और पॉवर्टी में रिडक्शन ना हो, कम ना हो, तब तक सही मायने में इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट नहीं होता है। पूरे कंट्री का जो डेवलपमेंट है वो अगर इनकम इनइक्वालिटी है, पॉवर्टी है, तो वो सही मायने में पूरे कंट्री का डेवलपमेंट नहीं कहा जाता। Poverty eradication was one of the main goal of some of the 5 years plans in this context. We learned about 5 years plans in previous standard. 5 years plans are that it is for social, economic and agricultural development,
then to remove unemployment, okay, and to modernization. ठीक है, समाज में अगर मॉडर्नाइजेशन करना है, टेक्नोलॉजी डेवलप करना है, तो भी ये प्लानिंग जो है 5 years प्लान जो है वो डेवलपमेंट के लिए वो गवर्नमेंट के थ्रू किया जाता हुआ 5 years प्लान है, जिसमें 5 years में एक पूरा एजेंडा प्रिपेयर किया जाता है, जो वो एजेंडा जो है वो फुलफिल करना है। ठीक है, ये 5 years में, और फिर नेक्स्ट 5 years में वो और एजेंडा होगा जो उससे ज़्यादा अच्छे से फुलफिल कर सकते हैं। सो इट वाज स्टार्टेड फ्रॉम 1951 and after independent. So and 13th plan is continue here. Okay, so in this plan modernization is the important. Okay, so especially in the 5 years 5th 5-year plan and following plans, poverty eradication and alleviation special programs and schemes were started, but poverty could not be reduced to the targeted level. जो 5th-year प्लान था उससे उसमें जो पॉवर्टी इरेडिकेशन का जो था वो प्रोग्राम्स, उनकी स्कीम्स बनाई गई थी और वो स्टार्ट हुई थी, लेकिन फिर भी जो एक टारगेट जो रिडक्शन का जो टारगेट किया गया था पॉवर्टी के लिए वो फुलफिल नहीं हुआ और वो रिड्यूस ही नहीं हुआ। ओके, सो अभी भी हमें ज़रूरत है कि हमें पूरे एफर्ट्स करें, हमारी गवर्नमेंट जो है पूरे एफर्ट्स करे कि जिससे जो पॉवर्टी है वो कम हो जाए। ओके, सो नाउ लेट्स स्टडी द मीनिंग ऑफ पॉवर्टी। A situation where a major portion of population cannot even satisfy their minimum requirements are said to be poor. पूरे समाज का एक बहुत ही बड़ा पोर्शन जो है, मेजर पोर्शन ऑफ पॉपुलेशन कैन नॉट इवन सेटिस्फाई देयर मिनिमम नीड्स, दे आर कॉल्ड एज पुअर। जो अपनी मिनिमम नीड्स जो है, जो रोटी कपड़ा और मकान, वो भी सेटिस्फाई नहीं कर सकते, फुलफिल नहीं कर सकते हैं, तो वो पुअर कहलाते हैं। If a larger population is living below the minimum required standard of living, there exists widespread poverty. एक बहुत ही बड़ा पोर्शन जो है वो अगर अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग से भी नीचे अंडर में रहे, मीन्स अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है उससे भी बहुत ही कम लेवल में रहे वो, तो उसे वाइड स्प्रेड पॉवर्टी कहते हैं कि पूरे समाज में गरीबी फैली हुई है। सो many nations of the world have tried to interpret poverty in their way, but poverty being a relative concept, its meaning changes with change in time, place and society. ऐसा नहीं है कि सिर्फ हमारे देश में ही गरीबी है। Many countries face this challenge. बहुत से कंट्रीज में जो डेवलप्ड कंट्रीज है उनमें भी गरीब तो होते ही है, लेकिन हमारे यहाँ जो गरीबी है वो बहुत ही ज़्यादा मिनिमम लेवल पर है। ठीक है, तो ऑल द कंट्री एफर्ट टू रिमूव द पॉवर्टी। ओके, सो बट पॉवर्टी बीइंग रिलेटिव concept is its meaning changes with the change of time, with the change of place and society. हर जगह पे, हर समय पर, हर सोसाइटी में गरीबी का जो मीनिंग है वो डिफरेंट तरीके का होता है। ठीक है, इन मोस्ट ऑफ द इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉवर्टी एन एवरेज स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इज कंसिडर्ड एज बेस एंड एग्जिस्टिंग इनइक्वालिटीज इन सोसाइटी आर शोन, हैंस देयर एग्जिस्ट ए डिफरेंट इन द लेवल ऑफ पॉवर्टी। ओके, सभी जगह पॉवर्टी में डिफरेंट टाइप की स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है। ठीक है, सो सभी को डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट टाइप की पॉवर्टी जो है वो समझ में आती है, क्रिएट होती है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट पॉवर्टी कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, ट्रेडिशनल मीनिंग ऑफ पॉवर्टी और इनकम पॉवर्टी, राइट, एंड सेकंड इज मॉडर्न मीनिंग ऑफ पॉवर्टी और नॉन इनकम पॉवर्टी। तो ये दोनों पार्ट्स जो है उसके बारे में हम सीखेंगे। अकॉर्डिंग टू इनकम डेफिनेशन ऑफ पॉवर्टी, ए सर्टेन नॉर्मेटिव मिनिमम लेवल ऑफ पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड टू असर्टेन मिनिमम बेसिक नीड्स एंड सर्विसेज इज कॉल्ड पॉवर्टी। ठीक है, जो बेसिक नीड्स है हमारी, जो बेसिक सर्विसेज है, उनको खर्च करने के लिए या उनके लिए इनकम करने की जो मिनिमम लेवल है, मिनिमम सरफेस है, वो
उसे गरीब कहा जाता है। उसके नीचे की अगर जो इनकम या एक्सपेंडिचर जो जिस पर्सन भी करते हैं वो गरीब कहा जाते हैं। मीन्स के जो गवर्नमेंट जो है वो एक ऐसी प्राइस डिसाइड करती है हर कमोडिटी की या फिर इनकम की और एक्सपेंडिचर की, कि जिसके अंडर की जो इनकम है, सपोज के 100 रुपीज़ उन्होंने मीन्स के गवर्नमेंट ने प्राइस डिसाइड की है, तो 100 रुपीज़ के अंडर की जिसकी पर कैपिटा इनकम है, एक्सपेंडिचर या फिर इनकम है, वो गरीब कहा जाता है। और 100 रुपीज़ के ऊपर की जिसकी भी इनकम है वो गरीब नहीं कहा जाता। तो एक ऐसी लाइन जो डिसाइड की हुई है, ऐसी एक प्राइस डिसाइड की हुई है गवर्नमेंट ने, जो मिनिमम है उनको पॉवर्टी लाइन कहती है। और उसके आधार पर समाज में कितनी गरीबी है, पूरे कंट्री में कितनी गरीबी है, उसका डिसीजन लिया जाता है। So all people who have less than required income or spend less than required minimum expenditure are said to be poor। जो अपनी मिनिमम इनकम है और उनका एक्सपेंडिचर है वो अगर मिनिमम लेवल पर है तो उसको गरीब कहा जाता है। So according to this interpretation, poverty is a state of scarcity। इसके लिए जो पॉवर्टी है, जो स्केर्सिटी का एक सिचुएशन है, इट इज़ अ सिचुएशन ऑफ स्केर्सिटी, कि जहाँ पे फूड, क्लॉथ्स, एजुकेशन, हेल्थ, शेल्टर, इनकी स्केर्सिटी है। तो इस कंडीशन को पॉवर्टी कहा जाता है। In India, poverty line is defined in reference to consuming minimum required calories or minimum consumption expenditure required to get minimum calories। इंडिया में कैसे गरीबी का ख्याल जो है, गरीबी का कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर किया जाता है कि जो भी एक पार्ट है, समाज का कोई एक पार्ट है, अगर वो अपनी जो रिक्वायर्ड कैलोरीज है, जो पूरे खाने में जितनी भी रिक्वायर्ड कैलोरीज चाहिए, डेली कैलोरीज, उनके आधार पर उनको गरीब क्या कितने हैं समाज में ये डिसाइड किया जाता है। मीन्स पॉवर्टी लाइन इज डिफाइंड बाय देयर कैलोरीज। Okay, but the limitation of the method is that it only shows the situation of non-availability of food or starvation। इसका मतलब है कि पूरे समाज में कितने लोग जो है जिनको पूरी कैलोरी वाली फूड जो है वो नहीं मिलती है, तो ये जो सिचुएशन है उसके आधार पर कितने लोग पुअर हैं ये डिसाइड किया जाता है। बट दिस इन दिस मेथड द लिमिटेशन इज दैट नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ फूड और स्टारवेशन, राइट, कि जो स्टारवेशन जो है, स्टारवेशन मीन्स जिसे कहते हैं कि पूरी खाने की चीज़ें नहीं मिलती है, जो न्यूट्रिशन वाली चीज़ है, फूड है, वो नहीं मिलती है। तो ये सब सिर्फ फूड के आधार पर ही डिसाइड किया जाता है। बट पोवर्टी इज़ नॉट ओनली ए सिचुएशन ऑफ स्टारवेशन। मीन्स जितने लोग गरीब है, जिनको खाने का नहीं मिलता है, सिर्फ इनके आधार पर गरीबी जो है वो डिसाइड नहीं की जाती है, राइट। In the concept of minimal required standard of living, apart from food, other necessities such as clothing, housing, education, health, cleanliness, pure drinking water are also included, and then only the non-income poverty has become a popular modern concept of poverty। इसका मतलब है कि ये जो कॉन्सेप्ट है उसमें सिर्फ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या फिर फूड के अलावा ऐसी कई चीज़ें हैं जो नेसेसिटीज़ हैं जो हमारे डेली लाइफ में अवेलेबल होती है। मीन्स क्लोथिंग, हाउसिंग, एजुकेशन, देन हेल्थ, मेडिसिन्स, देन क्लीनलीनेस, प्योर ड्रिंकिंग वाटर। कई जगह तो ऐसे प्योर ड्रिंकिंग वाटर भी नहीं मिलता है, ठीक है। तो ये ऐसी सिचुएशन से जितने भी लोग, ये जो ऐसी सिचुएशन जितने भी लोग फेस करते हैं, इन सभी को पॉवर्टी में इंक्लूड किया जाना चाहिए, ठीक है। तो पॉवर्टी जो है वो सिर्फ स्टारवेशन की कंडीशन नहीं है, ये सभी चीज़ें भी उनमें इंक्लूड किया जाना चाहिए। ओके, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न इकोनॉमिस्ट, इनकम पॉवर्टी इज़ वन ऑफ द इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ पॉवर्टी, बट इट ओनली रिफ्लेक्ट्स ए सिंगल एस्पेक्ट ऑफ ह्यूमन लाइफ। सिर्फ इनकम पॉवर्टी है जो बेसिक इम्पोर्टेंट एलिमेंट्स है, लेकिन सिर्फ
वो एक आधार पर, ह्यूमन लाइफ के आधार पर ही किया जाता है उनको, ठीक है। फ्रीडम ऑफ चॉइस इन ऑक्यूपेशन विच इज अवेलेबल टू रिच इज नेवर अवेलेबल टू पुअर। जितने भी ऑक्यूपेशंस मीन्स उनकी अपॉर्चुनिटीज़ जो है, फ्री चॉइस जो है उनकी उनकी जो प्रेफरेंसेस है, वो जितनी भी रिच पीपल को मिलती है उतनी अपॉर्चुनिटीज़ पुअर पीपल को नहीं मिलती है। मीन्स रिच पीपल जो होते हैं उनके पास फ्रीडम ऑफ चॉइस होती है, मतलब कि वो जो चाहे कर सकते हैं, क्योंकि उसके पास पैसे होते हैं, उनके पास बहुत ही अपॉर्चुनिटीज़ होती है, उनके पास बहुत ही चांसेस होते हैं, चॉइसेस होती है, सो दे कैन फुलफिल देयर चॉइसेस, राइट, बट पुअर कैन नॉट। In this context, to get a broader meaning of poverty, income should not be the sole measuring rod of deprivation, but other important elements of human development such as knowledge, long and healthy life, good standard of living, individual freedom, availability of opportunities, and a life with choices and self-respect should also be considered. इसके लिए सिर्फ स्टार्वेशन या फिर कोई ऐसी फूड ना मिले, ये ही सिचुएशन जो है वो गरीब नहीं कही जाती। बस सिर्फ पॉवर्टी का मीनिंग, एक ब्रॉड मीनिंग ये होता है कि उनकी जो इनकम है बहुत ही कम होती है, उनके पास नॉलेज, हेल्दी लाइफ नहीं है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत ही अच्छा नहीं है, और उनके चॉइस की और अपॉर्चुनिटीज़ की उनके पास अवेलेबिलिटी नहीं है, राइट, और सबसे ज़्यादा सेल्फ रिस्पेक्ट भी नहीं है। ये सभी बातें जो है वो पॉवर्टी में कंसिडर की जानी चाहिए। UNDP, while preparing a development report through HDI Human Development Index and HPI Human Poverty Index, included three important parameters, namely knowledge, health and starving of living, राइट। जो UNDP है, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, वो ऐसे प्रोग्राम्स जो है वो डेवलप करते हैं HDI थ्रू ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है उनको, और HPI ह्यूमन पॉवर्टी इंडेक्स जो है वो, इनमें ऐसे प्रोग्राम्स जो है वो इंक्लूड करते हैं जो सिर्फ नॉलेज, हेल्थ, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है उनके पैरामीटर्स को इम्पोर्टेंट दे, अंडर विच नॉलेज, literacy rate and enrollment ratio for health life expectancy and for standard of living per capita total house production is considered। इनमें सभी में जो लिटरेसी रेट है उनको भी इंक्लूड किया जाता है, नॉलेज, देन एनरोलमेंट रेशियो, हेल्थ लाइफ एक्सपेक्टेंसी मीन्स जब वो बोर्न हो तब वो कितनी लाइफ स्पेंड कर सकेगा, मीन उसकी हेल्थ कंडीशन कैसी है कि वो कितने लाइफ तक जी सकेगा, ये उसे हेल्थ लाइफ एक्सपेक्टेंसी कहते हैं। और उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग जो है, पर कैपिटा इनकम जो है, ये सभी जो है वो उसको इंक्लूड किया गया है। ओके, सो दिस वाज द मीनिंग ऑफ पॉवर्टी। नाउ वी लर्न अबाउट द नेचर ऑफ पॉवर्टी। सो देर आर टू पार्ट्स ऑफ पॉवर्टी, right? Absolute poverty and relative poverty. Okay, to understand the concept of poverty more clearly according to its nature, economics have divided poverty into two parts. Absolute poverty means a real poverty, right, and relative poverty means comparative poverty, right? Okay, so now we will see about absolute poverty. The minimum expenditure or income required to satisfy the minimum basic needs and services is known as poverty line. जो कोई भी इनकम हो या कोई भी उसके पीछे एक्सपेंडिचर करना हो, उसकी जो मिनिमम जो लाइंस है, मीन्स जो मिनिमम उनकी बेसिक नीड्स है उनको सेटिस्फाई कर सके, उनको पॉवर्टी लाइन कहते हैं, जो मिनिमम है, लो लेवल पर है, ठीक है। मैंने जैसे पहले एग्जांपल दिया कि अगर मिनिमम लाइन जो बनाई गई 100 रुपीज़, तो 100 रुपीज़ से नीचे अगर इनकम है कोई भी पर्सन की तो वो पुअर कहलाता है,
100 रुपीज़ के ऊपर की कोई इनकम है तो वो पुअर नहीं कहलाता है। तो गवर्नमेंट जो है वो ऐसी एक प्राइस डिसाइड करते हैं जिससे पता चल सके कि कितने लोग पुअर हैं। The population having income or expenditure below this poverty line are said to be absolutely poor. ये जो भी पॉपुलेशन, जितने भी पर्सन्स ये पॉवर्टी लाइन के अंदर की जो इनकम है वो अगर गेन करते हैं तो उनको एब्सोल्युटली पुअर कहा जाता है, मीन्स रियल पॉवर्टी उसे कही जाती है। एब्सोल्यूट पॉवर्टी इज ऑल्सो नोन एज कंप्लीट पॉवर्टी, उसे कंप्लीट पॉवर्टी भी कहा जाता है क्योंकि वो कम्प्लीटली गरीब है, वो अपनी बेसिक नीड्स जो है वो भी सेटिस्फाई नहीं कर सकते हैं, मीन्स उनकी इतनी इनकम ही नहीं है जिससे वो अपनी बेसिक नीड्स जो है वो सेटिस्फाई कर सकें, तो उनको कंप्लीट पुअरिटी कहा जाता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ एब्सोल्यूट पॉवर्टी हेल्प्स अस टू कैटेगराइज पीपल लिविंग बिलो पॉवर्टी लाइन एंड टू रिड्यूस पॉवर्टी अमोंग दिस टारगेट ओरिएंटेड पॉलिसीज कैन बी फ्रेम्ड। ओके, इससे क्या ये होता है कि हम जो लोग हैं पूरे कंट्री के जितने भी लोग हैं उनको कैटेगराइज कर सकते हैं, जिसकी भी पॉवर्टी लाइन से हमें ये पता चलता है कि कितने लोग गरीब है, समाज में कितनी गरीबी है, और इसके बाद जो पॉवर्टी रिड्यूस करने के लिए जो प्रोग्राम्स, जो पॉलिसीज बना सकती है गवर्नमेंट, वो एफर्ट्स करती है कि पूरी तरह से गरीबी जो है वो रिड्यूस कर सके। Okay, so second is poverty line. So to understand the level of absolute poverty, the minimum consumption expenditure required to fulfill the minimum physical amount of cereals, pulses, milk, butter, etc. should be studied. जो पॉवर्टी लाइन है उनको उनका लेवल क्या है वो समझने के लिए जो मिनिमम कंजप्शन जो है हमारा डेली, उनको स्टडी किया जाता है कि वो बेसिक नीड्स जो है वो फुलफिल कर सकते हैं या नहीं, उनके आधार पर वो किया जाता है। इसके लिए सीरियल्स, पल्सेस, मिल्क, बटर जो हम डेली यूज़ करते हैं उनसे स्टडी की जाती है। टू असर्टेन दिस मिनिमम पर कैपिटा कंजप्शन एक्सपेंडिचर इन द इनिशियल ईयर्स ऑफ प्लानिंग, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च हैज़ डिसाइडेड दैट फॉर रूरल एरियाज per person per day 2400 calories and for urban areas per person per day 2100 calories are required. इसलिए इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च जो है उन्होंने ऐसा डिसाइड किया है कि रूरल एरियाज मीन्स विलेजेस में पर पर्सन पर डे, हर एक पर्सन को हर दिन डेली मिनिमम 2400 कैलोरीज मिलनी चाहिए। जो भी वो फूड खाते हैं, डेली यूज़ करते हैं, उनमें से 2400 कैलोरीज मिलनी चाहिए, और अर्बन एरियाज़ में पर डे 2100 कैलोरीज मिलनी चाहिए। ये जो रिक्वायरमेंट है वो उन्हें डेली फूड में मिलनी चाहिए। This method was accepted by Planning Commission in 1969 and taking 1960 to 61 prices as base year. Rupees 20 per capita per month was decided as the measure of road of poverty. 1960 और 61 को बेस ईयर मानते हुए 1969 में ये डिसाइड किया गया कि जितने भी लोगों की पर कैपिटा इनकम पर मंथ, हर एक व्यक्ति की पर मंथ अगर इनकम 20 रुपीज़ है तो उनको इन पर से आधार पर रखते हुए पॉवर्टी जो है वो डिसाइड की जाती है। ठीक है, तो ये जो है मेथड वो प्लानिंग कमीशन में डिसाइड करते हैं। ओके, सो विद दिस वर्किंग मेथड दांडेकर एंड रथ फॉर रूरल एरियाज ऑन द बेसिस ऑफ 1960 to 61 prices decided rupees 15 per capita per month as poverty line and for urban areas 22.50 rupees per capita per month. इससे ये डिसाइड किया गया कि रूरल एरियाज में पर कैपिटा इनकम 15 होनी चाहिए और अर्बन एरियाज में पर कैपिटा इनकम जो है वो 22.50 होनी चाहिए। ये जो है वो प्राइस डिसाइड की गई थी पॉवर्टी लाइन बनाने के लिए। Later, Planning Commission appointed an expert committee under the chairmanship of Professor D.T. Lakdawala, which estimated poverty
for the year 1993, taking 1973 to 74 prices as base years. प्रोफेसर D.T. लाकडावाला ने 1993 को बेस ईयर्स मानते हुए एक कमेटी बनाई थी और उसमें ऐसा डिसाइड किया गया था कि फॉर रूरल एरियाज 49 पर कैपिटा पर मंथ and urban areas 57 rupees per capita per month. Consumption expenditure was estimated to fulfill the requirements for the above poverty line. 73 to 74 में रूरल एरियाज में 49 रुपीज़ होनी चाहिए पर कैपिटा इनकम पर मंथ, राइट, और अर्बन एरियाज में 57 होनी चाहिए पर कैपिटा पर मंथ. तब तो इतनी इन्फ्लेशन नहीं थी, बहुत ही कम इन्फ्लेशन थी, इसलिए 73-74 में 49 रुपीज़ जो है वो भी बहुत ज़्यादा लगते थे. सो बेस ईयर्स 73 to 74 में ये डिसाइड किया गया था पोवर्टी लाइन के लिए. Okay, so in the method of calculating poverty line, one of the major drawbacks is that it only takes into account calories consumption, but poverty is an economic situation and hunger is a physical situation, so that poverty line becomes starvation line. poverty line सिर्फ starvation line बन गई क्योंकि सिर्फ इसमें कैलोरी ही एजम्स होती थी, ठीक है, और poverty is not a economic situation. सो इसलिए फिजिकल सिचुएशन नहीं है, सो सिर्फ इकोनॉमिक सिचुएशन, ये सभी के आधार पर कि उनकी बेसिक नीड्स किसी तरह से सेटिस्फाई हो उनके आधार पर डिसाइड किया जाता है. So to make the concept of poverty line more progressive, the minimum standard of quality life should be decided, and for that required facilities for quality life such as nutritive food and balanced food, health, electricity, kitchen fuel, clothing, educational expenditure, housing, etc. should be included. इसके लिए पॉवर्टी में ये सभी लाइन जो है वो फूड, हेल्थ, ये सभी, किचन फ्यूल, क्लॉथिंग, एजुकेशन, हेल्थ मीन्स मेडिसिन, ये सभी भी इंक्लूड किया गया. In this context, to redefine the measuring rod of poverty, the committee under the chairmanship of Professor Suresh Tendulkar submitted its report to the government in the year 2009. प्रोफेसर सुरेश तेंदुलकर ने 2009 में एक रिपोर्ट सबमिट किया जो आज तक भी चला आ रहा है. The committee decided a new method of measuring poverty in which, apart from consumption expenditure for minimum calories, expenditure on education and health was also included. Means health पर भी और education के खर्च जो है वो भी इसमें include किए गए थे. According to this new method, in the year 2011 to 12, the per capita monthly consumption expenditure for rural areas rupees 816 and for urban areas rupees 1000 was decided as the poverty line. So 2011 और 12 में ये डिसाइड किया गया कि poverty line की जो फिक्स अमाउंट थी वो क्या थी. रूरल एरियाज में पर कैपिटा इनकम जो है वो 816 होनी चाहिए मंथली इनकम, राइट, एंड अर्बन एरियाज में जो है वो 1000 होनी चाहिए पर कैपिटा इनकम, राइट, कोई एक ही पर्सन की इनकम. ओके, सो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट, ये अंडरलाइन करना, in order to calculate absolutely poverty at an international level, the cost of all resources consumed by an average adult are considered. जो एडल्ट की जो एवरेज कंज्यूम्ड की एवरेज है वो कंसिडर की जाएगी, ठीक है. इन इंटरनेशनल लेवल पॉवर्टी लाइन बेस्ड ऑन परचेजिंग पावर पैरिटी डिसाइडेड एज $1.25 per day for the year 2005, which was $1 for the year 1990, and for the year 2015 it is adopted as $1.90 per day. With the help of international poverty line, absolute poverty for the different nations can be measured using a uniform method. ये poverty जो है वो इंटरनेशनल लेवल पर भी डिसाइड की जाती है, और इसके लिए जो डिसाइड किया गया है कि 1.25 पर डे डॉलर, $1.25 पर डे जिनकी इनकम हो वो पॉवर्टी लाइन डिसाइड की गई है, एंड $1
फॉर द ईयर 1990 में। 1990 में पर $1 थी, लेकिन 2005 में $1.25 पर डे डिसाइड की गई है। ओके, और 2015 में 1.90 पर डे हुई है। ओके, सो इंटरनेशनल लेवल पर भी इस तरह से पूरी जो पॉवर्टी है वो डिसाइड की जाती है। ओके, सो this topic is over here. In next meeting we will learn about measurement of absolute poverty. Okay, thank you and have a nice day.